वेलकम टू माँ कल्याणिका पब्लिक स्कूल पेंड्रा रोड। माँ कल्याणिका पब्लिक स्कूल पेंड्रा रोड आपका स्वागत करता है। हेलो स्टूडेंट्स, आई एम प्रमिता चौधरी फ्रॉम माँ कल्याणिका पब्लिक स्कूल पेंड्रा रोड, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। So student, we are back to our environmental studies class of 4th. Hope you all are well at home following the social distancing rule and maintaining the hygiene. This time you have to be positive and try to learn every day something. This learning process will improve your knowledge. Okay, it is beneficial for you. आप कोशिश करें कि हर दिन कुछ ना कुछ नया सीखें जो कि आपके लिए बहुत ही beneficial होगा. So students, in my previous video we have discussed our chapter. We were discussing about our chapter 6, games we play. With these points we will try to understand few points I have already discussed, like introduction, games are fun, playing fairly, woman power. So whatever points are left we will discuss in this video. So let's start. Students, we have seen that recreational activities and recreation. What is recreation? I have already explained you. Whatever in your fun time, whatever you do, you makes you happy, that is called recreation. And games are fun. Like you can see games are too much fun. You feel happy when you play, and you enjoy and you physically it makes you physically fit also. And we have seen playing fairly, it means you should follow the rules. You should not do any kind of fight and argument. If you have any doubts and if you have any disappointments and any differences with anyone, you can discuss to your sports teacher, or you can take help of any elder. And some sports use in some sports there is umpire or referee. They take help of referee to avoid these kind of quarrels and arguments. We have seen a woman power, like in previously in some places people thinking that women are not that much fit and strong enough. But you can see these days, like Sania Mirza, Kana Maleshwari, PT Usha, Bhagwat, like these are women players. They won so many medals and they makes India proud. So women are equally tough and competitors for anyone. So our next point is playing together. So let's start reading. The sports teacher in Ragni's school encourages all boys and girls to play together. They play cricket, badminton, tennis and chess. It means जो स्पोर्ट्स टीचर हैं रागनी के स्कूल में, वो इनक्रेज करते हैं, मतलब उन्हें प्रोत्साहित करते हैं खेलने के लिए. ऑल द बॉयज़ एंड गर्ल्स टुगेदर, है ना, साथ में खेलने के लिए. दे प्ले क्रिकेट, बैडमिंटन, टेनिस एंड चेस. और वो क्रिकेट, बैडमिंटन, चेस खेलते हैं. वी मस्ट प्ले विथ एवरी वन. द मोर चिल्ड्रन आर देयर, द मोर फन विल बी. Next time when you play a game, try to be include as many children as you can. For example, when you play cricket, you can make new rule. Each child get to only 6 balls. So many more children can be included in the team instead of 11. This will be also make the game more enjoyable. So it means कि हमें जो क्या करना चाहिए, हमें सबके साथ खेलना चाहिए. हम जितने ज़्यादा आपके ग्रुप में, आपके टीम में प्लेयर्स होंगे, जैसे ये देखिए, जैसे आप क्रिकेट खेल रहे हैं, आप जितने ज़्यादा प्लेयर्स को एक साथ लेके खेलेंगे उतना ज़्यादा ही आपको मज़ा आएगा. और एक नया रूल बना सकते हैं जैसे कि क्रिकेट में, कि एक जो प्लेयर है, जो बैट्समैन है, वो सिर्फ 6 बॉल्स को ही फेस करेगा, ताकि और ज़्यादा से ज़्यादा गर्ल्स एंड बॉयज़ एक साथ खेल सकें, एंजॉय कर सकें. और जब आप साथ में खेलते तो बहुत एक टीम स्पिरिट सीखते हैं, आप बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती हैं, और कोऑपरेशन और कोऑर्डिनेशन भी सीखते हैं, है ना. और इसके साथ ही साथ आप अब इंजॉयबल बनता है, क्योंकि ज़्यादा लोगों के साथ ज़्यादा लोग होते हैं तो कुछ बातें करते हैं, फ़न करते हैं, साथ ही साथ आप फिज़िकली फिट भी होते हैं. सो ट्राई टू बी प्लेइंग टुगेदर, मतलब सबके साथ मिलके खेलने की कोशिश करनी चाहिए. सो नेक्स्ट पॉइंट इज़ गेम्स एट होम, मतलब घर पे जो हम गेम खेलते हैं. आफ्टर स्कूल एंड ऑन हॉलीडेज, रागनी प्लेज विथ हर फ्रेंड्स इन
नेबरहुड, मतलब जब स्कूल एंड होता है और कभी हॉलीडेज़ में जो रागनी है वो अपने नेबरहुड में अपने फ्रेंड्स के साथ, मतलब आस पड़ोस के जो दोस्त हैं उसके, उनके साथ खेलती है। हरी इज़ द सन ऑफ अ हेल्पर इन रागनीज हाउस। जो हरी है वो उनके घर पे जो हेल्पर है उनका बेटा है। ही ऑल्सो प्लेस विथ देम, मतलब वो उनके साथ भी खेलता है। टुगेदर दे प्ले हॉपस्कॉच, हाइड एंड सीक एंड ब्लाइंडमैन्स ब्लफ। वो साथ में मिलके हॉपस्कॉच में जैसे आप लंगड़ी खेलते हैं ना, आई शो यू, ये इस तरीके से है ना, ये खेलना। और ये आपका ब्लाइंड मैन ब्लफ है ना, आँख में चिचोली, और हाइड एंड सीक मतलब लुका छुपी, है ना, ये सारी चीज़ें वो खेलते हैं। हरी इज़ एन एक्सपर्ट स्पिनिंग टॉप्स, है ना। हरी जो है वो जो लट्टू घुमाना बोलते हैं ना, ये लट्टू घुमाते हैं, तो उसमें वो बहुत ही एक्सपर्ट है, उसे उसकी ट्रिक्स भी आती है। हरी इज़ एक्सपर्ट इन स्पिनिंग टॉप्स, ही नोज़ अ लॉट ऑफ ट्रिक्स, ही इज़ ऑल्सो गुड एट फ्लाइंग। तो जो हरी है उसे जो लट्टू घुमाने उसकी ट्रिक्स बहुत अच्छी आती है, वो बहुत अच्छे से करता है, और उसे बहुत सारी ट्रिक्स भी आती हैं इस चीज़ को कि कैसे किया जाता है। और जो हरी जो है वो फ्लाइंग काइट्स मतलब पतंग उड़ाने में भी वो बहुत अच्छा है। इन द काइट फ्लाइंग कॉम्पिटिशन दैट चिल्ड्रन हैव ऑन 15 अगस्त, हरी लीड्स द ग्रुप। मतलब जो काइट फ्लाइंग मतलब पतंगबाजी की जो कंपटीशन है जो क्योंकि 15 अगस्त को है, हरी जो है उस ग्रुप का वो लीड कर रहा है, उसे एज अ कैप्टन उसे लीड करता है क्योंकि वो उस चीज़ों में बहुत अच्छा है। सो स्टूडेंट्स, आपने देखा कि गेम्स जो हम खेलते हैं फ्री टाइम में अपने इंजॉय करते हैं। सो स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में आपने देखा कि गेम्स वी प्ले, हम जो गेम खेलते हैं, और हमने रिक्रिएशन देखा कि फ्री टाइम में जो भी हम कुछ एक्टिविटी करते हैं, जो भी करते हैं वो अब रिक्रिएशन कहलाता है, जिसमें हम इंजॉय करते हैं। और गेम्स और जो बहुत ही गेम्स जो है बहुत फ़न और इन्जॉयबल होते हैं। हम स्कूल में जब गेम्स के पीरियड होते हैं तो बच्चे बहुत इन्जॉय करते हैं और दोस्तों के साथ खेलते हैं। और स्कूल में कई तरह के बच्चे होते हैं, जैसे कुछ बच्चों को पोलियो होता है, लंगड़ा के चलते, लेकिन आपने देखा कि हमें उनके साथ भी जो एग्ज़ाम्पल बुक में है उसमें देखा कि वो जो रागनी है अपने स्कूल फ्रेंड जो रोहित है उसके साथ भी उसने खेला, जो कि लिम्स मतलब लंगड़ा के चलता है, लेकिन फिर भी वो रुकता नहीं है, वो खेलता ही रहता है, सबके साथ दिन और आगे बढ़ता है। और आपने देखा प्लेइंग फेयरली मतलब सही तरीके से खेलना, चीटिंग नहीं करना। और जिसमें कई बार देखते हैं कि कई बार बहस हो जाती है, किसी डिसीजन को लेके झगड़े हो जाते हैं, ऐसे में किसी टीचर की हेल्प लेनी चाहिए या फिर किसी बड़े की हेल्प लेना चाहिए, और हमें टीम स्पिरिट के साथ करना चाहिए, गेम स्पिरिट के साथ खेलना चाहिए। और कुछ गेम्स में देखा कि रेफरी और अंपायर होते हैं जो कि डिसीजन लेते हैं गेम्स में, फेयरली के रूल फॉलो हुए हैं कि नहीं, ये सारी चीज़ें। हमने वुमेन पावर में देखा कि पहले के बिलीव था कि जो लड़कियां हैं वो गेम्स नहीं खेल सकती, लेकिन आप देखेंगे कि जो एग्जांपल्स हैं, सानिया मिर्जा, कर्णम मल्लेश्वरी, पीटी उषा, है ना, अंजलि भागवत, ये सारे ने इतने सारे मेडल्स हैं वो जीते हैं और देश का नाम रोशन किया है। इससे हमें पता चलता है कि वुमेन्स आर इक्वली टफ एंड कॉम्पिटिटिव, है ना, वो स्ट्रॉन्ग है, वो कुछ भी कर सकते हैं। प्लेइंग टुगेदर, हमने देखा प्लेइंग टुगेदर मतलब हमें सब साथ में मिलके खेलना चाहिए, और टीचर्स जो हैं वो इनक्रेज करते हैं लोग बच्चों को साथ में खेलने के लिए। और हमें ऐसे रूल्स बनाने चाहिए ताकि जैसे क्रिकेट खेलते हैं तो ऐसे उनके ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे साथ में खेलें, जिसमें उसमें मज़ा भी आता है। जैसे कि रूल बना के कि एक वो जो प्लेयर है वो 6 बॉल्स को ही फेस करेगा, ताकि सभी को चांस मिलेगा और फिज़िकल एक्टिविटी होगी, आपको मज़ा भी आएगा साथ में खेल के। गेम्स एट होम में देखा आपने कि जो रागनी है वो घर में जाके अपने आस पड़ोस के बच्चों के साथ भी खेलती हैं। उनके घर में जो हेल्पर है वो उसके बेटे के साथ भी खेलता है, वो हेल्प उनके साथ हॉपस्कॉच, हाइड एंड सीक और ब्लाइंड मैन बफ खेलते हैं। जो हरी है वो बहुत, जो उनके हेल्पर का बेटा है वो भी उनके साथ खेलता है, और ये वो एक्सपर्ट है लट्टू को घुमाने में, आपको दिखाया जैसे मैंने, एक्सपर्ट है टॉप को स्पिनिंग और टॉप में, और उसे बहुत सी ट्रिक्स भी आती हैं, साथ ही साथ उसे फ्लाइंग काइट मतलब पतंग उड़ानी भी आती है। और वो जो 15 अगस्त में 15 अगस्त में होने वाला है पतंगबाजी कॉम्पिटिशन में, वो उसको ग्रुप को लीड कर रहा है। सो स्टूडेंट्स, होप यू अंडरस्टैंड दिस चैप्टर properly. Whatever points are left, we will discuss in our next video. Till then, stay tuned, stay home, stay safe. Bye bye.